Welcome. We are Infinity Tech, the one-stop shop for all of your marketing needs. Are you looking for a stylish, heartwarming website, a bespoke mobile app for your clients, or a high-quality logo design? Are you looking to become a social media influencer? Or maybe you are looking for an experienced team to manage your social media business campaigns around the clock? Look no further, as we are here to help you achieve your full potential. We offer clear communication channels, dedicated support team on hand at all times, clear planning and strategy, several years of experience, CO services, website build and hosting, digital marketing, logo and brand design, social media management, app development, content writing. Our goal is to bring you the best possible ROI to build your brand around your business. This is our revenue that we generated just in the last 3 months. This thing converts, man. We're about 4 months into this. And Okay, so आज काफी students हो गए, so I think let's start. Right. Okay, so major sports of Pakistan की बात करेंगे, ठीक है? So let's talk about the concentration in sports, ठीक है? So during 2015 to 16, exports were of 18.2 billion against 20.1 in the corresponding period of 2014, ठीक है? So 2015 में देखें तो हमारी exports हैं वो decrease हुई. Pakistan exports continue to be concentrated in a few items, ठीक है? तो basically हमारी exports का एक खास trend ये है कि it is concentrated, ठीक है? यानी कि सिर्फ कुछ खास आइटम्स ही हैं जो हम एक्सपोर्ट करें. हमारी एक्सपोर्ट बहुत डाइवर्स नहीं है, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं है, सिर्फ कुछ आइटम हैं, ठीक है? So it's concentrated in a few items, namely cotton manufacturers, ठीक है, which is 58.1% of the export, leather 4.6, rice 8.8%, ठीक है? तो ये फिगर्स थोड़ी पुरानी है, but we'll also look at the latest figures later. ठीक है, so together these three items, cotton manufacturers, leather and rice, they account for 71.5% of total exports. So the composition of exports has not changed much. ठीक है, so in fact जो cotton exports है उसका शेयर बहुत high है in the total exports, ठीक है? हम cotton को बहुत export करते हैं, ठीक है? तो the share of cotton manufacturers total exports has increased 65 to 70% in 1 year, ठीक है? अगर हम कंपेयर करें 2015 2014, ठीक है? उसमें फिर एक और चीज़ भी कि पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग ओनली टू अ फ्यू कंट्रीज, ठीक है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर मेनली टूवर्ड्स
A few countries such as USA, China, United Arab Emirates, Afghanistan and UK. ठीक है। So, पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट्स क्या है? जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है हमारी दैट इज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्स। ठीक है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स कॉटन yarn, कॉटन क्लॉथ, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉवल्स, बेडवेयर। ठीक है। तो हम ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करें, दे अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स। ठीक है। Pakistan's export in textile manufacturers is facing stiff competition from China, European Union, India and Bangladesh. ठीक है। So पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स थी, देयर वाज अ टाइम इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन। ठीक है। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को कंपेयर करें विद चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, तो हमारी एक्सपोर्ट्स उनको से बहुत ज़्यादा थी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वास्ते कह सकते हैं अंटिल 1970s। ठीक है। लेकिन अब अगर हम लेटेस्ट फिगर देखें तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा है, इवन इंडिया की हमसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है। चाइना इज ऑल्सो इमर्ज एज अ प्लेयर इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। ठीक है। तो अब हमारी एक्सपोर्ट्स कम होने शुरू हो गई हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वी आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश स्पेशली, और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन। ठीक है। अगर पाकिस्तान ने अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो इट हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है। लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? बेसिकली हम जिस क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस करें, वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। ठीक है। कॉटन ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं, बट हम जो रेडीमेड गारमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर नॉट रियली ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक है। तो जो हम रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं और जो पाकिस्तान में मिलते हैं उनकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है, बट स्टिल हम जो इवन जो एक्सपोर्ट करें उसकी क्वालिटी इज नॉट एट पार विद द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल इन अदर कंट्रीज। ठीक है। तो हमें उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक। उसके अलावा वी नीड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है वो महंगी हो गई है। ठीक है। दे यूज्ड टू बी चीपर। कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, इनकी एक्सपोर्ट्स दे आर चीपर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो वी हैव टू कम अप विद सम वे कि हम अपनी जो कॉस्ट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की वो किसी तरह रिड्यूस कर सकें। But at the same time, we have to meet the requirements of consumers in terms of fashion and design। ठीक है। जो फैशन है जिन मुल्कों में हम एक्सपोर्ट करते हैं लाइक यूएसए हो गया। ठीक है। यूरोप में भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर यूएई है। ठीक है। तो स्पेशली यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, इवन चाइना, यहाँ जो फैशन है बहुत डिफरेंट है फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने उनकी फैशन के हिसाब से कपड़े डिज़ाइन करने हैं। ठीक है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो टेक्सटाइल्स के बाद दैट इज फूड ग्रुप। द एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रुप राइस, फिश, फ्रूट, मीट एटसेट्रा। ठीक है। सो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज वर्चुअल मोनोपोली इन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस। ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं पाकिस्तान इज द ओनली एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड। ठीक है। बासमती राइस प्रोड्यूस पाकिस्तान में होता है। इट्स अ रेयर टाइप ऑफ राइस। ठीक है। ठीक है। तो अगर 2015 में देखें तो हमारी एक्सपोर्ट बासमती या एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रुप इट एक्चुअली डिक्रीज। ठीक है। तीसरी कैटेगरी है लेदर एंड लेदर। पाकिस्तान इज अ लेदर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स। द शेयर ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स इज अबाउट 4.2% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। फिर हम स्पोर्ट्स गुड्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 1.5% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। ठीक है। लाइक एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान इंपोर्ट्स आर आल्सो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। तो हमने कहा था हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब है सिर्फ कुछ प्रोडक्ट, यानी हम सिर्फ कुछ आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह हमारी जो इंपोर्ट्स हैं दे आर आल्सो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। वी आर importing only a few types of items, namely machinery, petroleum and petroleum products, chemicals, transport equipment, edible oils, iron and steel, and fertilizer and tea.
हमारी imports का composition क्या है? Pakistan's imports are highly concentrated in a few countries. यानी कि हम जो चीज़ें import कर रहे हैं, we are getting those from only a few countries. ठीक है? According to data of 2015 to 2016, around 50% of the country's imports originate from only four countries like United Arab Emirates, China, Indonesia, and Saudi Arabia. ठीक है? It is worth mentioning that China has emerged as a major trading partner, both imports and exports. चाइना हैज एज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। हम ज़्यादातर चीज़ें जो अब चाइना से इम्पोर्ट करने लगे हैं, अब काफ़ी चीज़ें चाइना को एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल आइटम्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से और जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू अदर कंट्रीज, ठीक है, उन दोनों में जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। So balance of trade is simply equal to exports minus imports. और जब हम exports and imports की बात करें तो we are normally talking about the value of exports and value of imports. ठीक है, value of exports exceeds value of imports of physical items of a country during a, ठीक है, यानी कि अगर exports imports से ज़्यादा हो जाए, that means कि जो balance of trade है it's favorable. If value of imports exceed value of exports, अगर उल्टा हो जाए, if imports exceed the value of exports, that means balance of trade is unfavorable and country becomes a debtor. So if balance of trade account is favorable, that increases the country's capacity to afford goods and services. ठीक है, तो बेसिकली हमारा मकसद होता है कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल रखें, ठीक है, यानी कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है हमेशा इम्पोर्ट्स से ज़्यादा। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक्सपोर्ट्स एक्सीड इम्पोर्ट्स, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इज favorable, that basically increases the country's capacity to import more goods and services. ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी कैपेसिटी रह जाती है कि अगर हम थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें इम्पोर्ट करना चाहें तो भी कर सकते। प्लीज अपना माइक ऑफ करें। चटनी लैनी है ते कुर्सी अपनी अगे कर लै थोड़ी चल कुर्सी थोड़ी अपनी ठंड लादी है ते कर वो ना एक बार अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर फेवरेबल होगा तो इट विल इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू इंपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ नीडेड। देयर इज एक्सपेंशन इन फॉरेन ट्रेड। In case balance of trade is unfavorable, it reduces the capacity। ठीक है, अगर balance of trade unfavorable होगी यानी कि imports ज़्यादा होगी और exports कम होगी, तो it will reduce the capacity of a country to import more। ठीक है, अगर imports already ज़्यादा है तो हम मज़ीद imports नहीं कर सकते, ठीक है, because हम नहीं चाहते कि imports और exports का difference ऐसा हो कि imports exceed exports by a large amount। Imports should not be greater than exports by a large amount। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है कि इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, तो इट बेसिकली स्लोज डाउन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट रहा है वो ज़्यादातर डेफिसिट में रहा है, यानी कि इट हैज़ बीन अनफेवरेबल, ठीक है, फॉर द मोस्ट पार्ट सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट वाज इन डेफिसिट फ्रॉम 1947 टू 48। The balance of okay, in 47 to 48 we experienced a deficit in external merchandise account। ठीक है, in the ठीक है, actually in 47 to 48 जब पाकिस्तान नया बना था तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल, ठीक है, बिकॉज उस वक्त हमारी इंपोर्ट्स ही बहुत थोड़ी सी थी, ठीक है।
इन 50 to 51, ठीक है, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था अगेन बिकेम फेवरेबल बिकॉज देयर वाज अ शार्प एंड सडन राइज इन डिमांड ऑफ जूट एंड कॉटन इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू द कोरियन वॉर। ठीक है, ठीक है। So these were there were only 3 time periods हम कह सकते हैं जिसके दौरान हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल रहा है। अदर देन दैट मोस्टली इट हैज बीन अनफेवरेबल। ठीक है, during 1950 to 51 the export prices of Pakistan's primary commodities increased and the country earned large foreign exchange amounted to $405.6 million dollars। ठीक है, so largely हम कह सकते हैं the balance of trade in Pakistan has remained unfavorable। ठीक है, so what are the main causes of unfavorable balance of trade in Pakistan? एक वजह तो ये कि हमारा जो एक्सपोर्ट बेस है इट्स वेरी नैरो। ठीक है, मैंने बताया आपको कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, वी आर ओनली एक्सपोर्टिंग अ फ्यू आइटम्स। ठीक है, तो हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है इट्स ऑफ कॉटन। ठीक है, कॉटन ग्रुप जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, so बेसिकली हम ज़्यादातर कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू एक्सपैंड आवर बेस। ठीक है, और चीज़ें एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो हमने जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगाई थी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री लगाने का मकसद ये था कि वी शुड बी एबल टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का बेसिकली क्या मतलब है, टू रिप्लेस द इम्पोर्ट्स विद लोकल प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री लगाई थी टू रिप्लेस इम्पोर्ट्स विद लोकल प्रोडक्शन, इवन दोज इंडस्ट्रीज आर वेरी heavily dependent on imports। ठीक है, they are also importing imports and technology। इसके लिए हम कह सकते हैं पाकिस्तान इज अ कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी। पाकिस्तान आर मोस्टली कंजम्पशन ओरिएंटेड ड्यू टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज कंजम्पशन हैबिट्स। ठीक है, सो द पास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम देखें तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन इनकम्स ऑफ पाकिस्तानीज। ठीक है, एंड दे हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन कंज्यूमेबल्स। ठीक है, सिर्फ मोबाइल फोन्स को ले लें, टेलीविजन को ले लें, ठीक है, पाकिस्तानी इज स्पेंडिंग अ लॉट मोर ऑन दीज थिंग्स देन दे वर स्पेंडिंग लेट्स से 20 years ago। ठीक है, या आई मीन 15 years ago। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो पॉपुलेशन है इट्स इंक्रीजिंग रैपिडली, उसकी वजह से भी कंजम्पशन तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो लोग हैं दे आर कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड द फैक्ट कि द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, तो जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो ज़्यादातर लोकली कंज्यूम हो जाती है, तो ज़्यादातर सरप्लस नहीं बचता हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर देर इज लेस मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, जो मशीनरी इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रही है इट्स आउटडेटेड। ठीक है, इट्स नॉट द लेटेस्ट मशीनरी। ठीक है, तो दिस ट्रेंड हैज़ बीन कंटिन्यूइंग सिंस 1970s। ठीक है, सो सिंस 1970s देयर हैज़ बीन लेस मॉडर्नाइजेशन, बैलेंसिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी इन द प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके अलावा द नंबर ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स मेनली ड्यू टू नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैव गॉन अप। ठीक है, तो देयर वाज अ टाइम इन 1970s जो जब जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी दे वर नेशनलाइज, यानी कि दे वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके बाद डी नेशनलाइजेशन हुई थी बट स्टिल वी हैड अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज व्हिच वर नेशनलाइज्ड, अभी भी हैं। ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में यानी कि इंडस्ट्रीज व्हिच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, उनकी परफॉर्मेंस इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स टू देयर फुल कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इट इज बिलो देयर फुल कैपेसिटी। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड गुड्स ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी इज जस्ट 13.6% अकॉर्डिंग टू 2015 and 16 figures। ठीक है, the share of value added goods must increase to earn foreign exchange and turn trend of adverse balance of payment। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी वैल्यू एडेड गुड्स का जो शेयर है इन एक्सपोर्ट्स उसको इंक्रीज करें, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू रिवर्स द
ट्रेंड ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस पेमेंट, ठीक है। बैलेंस पेमेंट के बारे में बात करेंगे। यू कैन जस्ट इमेजिन दैट एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ट्रेड में डिफरेंस है काफी, ठीक है। ओके, उसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारी इकोनॉमी से, ठीक है। सो थिंग्स लाइक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता होता कब हुकूमत चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओवर स्टाफिंग का इशू इन कंपनीज है, मैनी कंपनीज आर ओवर स्टाफ्ड। फिर लेबर अनरेस्ट रहता है, स्पेशली इन द फैक्ट्रीज, so that basically reduces the efficiency of industries. So industries are not able to produce as much as they actually can. उसके अलावा we are also facing tough competition in international markets. There is stiff competition in foreign markets, ठीक है, which is affecting volume of foreign trade in Pakistan, ठीक है. So we are facing stiff competition from countries like China, India, Bangladesh, even Thailand, in this region. उसके अलावा अगर हम इस region से बाहर चले जाएं तो we are also facing competition from countries in the European Union. उसके अलावा जो फ्रेट रेट्स है, ठीक है, फ्रेट रेट्स क्या होते हैं, जब आपने कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी होती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, या तो आप जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं या यू मेक यूज़ ऑफ शिप्स, ठीक है। तो जो जहाज़ या जो शिप्स चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम फ्रेट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के फ्रेट हो जाते हैं, एक एयर फ्रेट है जिसमें हम एयरप्लेन्स को यूज़ करते हैं, और दूसरा सी फ्रेट है जिसमें हम शिप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो फ्रेट के रेट्स है ना, एयर फ्रेट हो गया, सी फ्रेट, उनके रेट्स दे हैव इंक्रीज्ड quite a lot, which has negatively affected the balance of trade of Pakistan. उसके अलावा जो फॉरेन मीडिया, इट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा अबाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान में हम चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करवाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों से फैक्ट्रीज में काम करवाते हैं। तो इस तरह की जो है ना, तो ये जो चाइल्ड लेबर, इस चीज़ को बहुत एडवर्टाइज़ किया गया इन फॉरेन मीडिया, तो जिसकी वजह से हमारे मुल्क की रेपुटेशन ख़राब हुई, हमारी इंडस्ट्री की रेपुटेशन काफ़ी इफेक्ट हुई, ठीक है। सो ये एक तरह का एडवर्स प्रोपेगेंडा है, ठीक है, दैट्स यू कैन से दैट, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक हकीकत है हमारे मुल्क में, बट स्टिल इसको इतना प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स बैड फॉर आवर इंडस्ट्री, ठीक है। सो एडवर्स प्रोपेगेंडा अबाउट द यूज़ ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके अलावा एंटी डंपिंग फैसिलिटीज इन द इंपोर्टिंग कंट्रीज और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कॉजिंग इम्बैलेंस इन ट्रेड। तो पाकिस्तान में एंटी डंपिंग फैसिलिटीज भी इतनी नहीं है, ठीक है। एंटी डंपिंग फैसिलिटीज का मतलब है कि जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है, ठीक है, वो डंप कर दिया जाता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जो कूड़ा वगैरह होता है हमारे शहर में ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए कोई फैसिलिटीज ऐसा सच नहीं है हमारे पास। द सेम गोज फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। उसको वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट इट ऑफन गोज, या तो लैंड पे पड़ा रहता है या इट गोज इनटू रिवर्स, ठीक है। और उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिमूव करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स गोइंग टू कॉज पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा ये कि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एंटी डंपिंग फैसिलिटीज है तो वी कैन रिसाइकिल इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। तो बिकॉज वी डू नॉट हैव दोज फैसिलिटीज, तो इट इज ऑल्सो causing unfavorable balance of trade in the sense कि we are not able to increase our exports. इसके अलावा there has been an increase in price of imports, ठीक है। The increase in price of fuel, ठीक है, आपको पता ही है कि पेट्रोल की कीमत काफ़ी इंक्रीज़ की है पिछले 2 साल में, अगर आप देख लें। फिर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हैज़ इंक्रीज। फिर वी हैव हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मशीनरी। फिर यूटिलिटी रेट्स हैव इंक्रीज। उसके अलावा जो हमारा एक्सचेंज रेट है, इट हैज़ डिक्रीज्ड ओवरऑल। पिछले अगर 2 साल में देखें या 3 साल में देखें तो इट हैज़ गॉन अप, ठीक है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डाउनवर्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो हमारा जो
करेंसी की जो वैल्यू इट हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है, पिछले 5 साल में देख ले तो इट हैज़ बेसिकली डिक्रीज्ड, ठीक है, which has inflated the cost of both which has inflated the cost of both capital goods and industrial raw material, ठीक है, यानी कि जो capital goods हम import करते हैं बाहर से और उसके अलावा जो raw materials हम export कर रहे हैं import कर रहे हैं बाहर से, इन दोनों चीज़ों की cost है has increased because जो value of the rupee has decreased, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें, ठीक है, और इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करें, ठीक है। सो हाउ कैन वी improve our exports? The exports can be increased by improving the technology for manufacturing sector as well as sector. एक तरीका तो ये है कि हम टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा तरीका ये है कि वी शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पेशली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट शुड बी कंपेरेबल विद इंटरनेशनल रेट्स, ठीक है। तो इंटरनेशनली competitive होना ज़रूरी है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो अगर चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इंडिया में कम है या बांग्लादेश में कम है, तो हमें भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके मुताबिक रिड्यूस करनी चाहिए। अदरवाइज हमारा जो प्रोडक्ट है इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड पीपल विल नॉट बी विलिंग टू बाय इट। ठीक है, इसके अलावा यूटिलिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू मैनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स है, मशीनरी वगैरह की, दे ऑल नीड टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें हम इनपुट्स के तौर पे यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज, लाइक जो रॉ मटेरियल्स हो गए मशीनरी, उनकी जो प्राइसेस है दे शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। वी शुड बी एबल टू import मशीनरी या buy raw materials at internationally competitive prices, ठीक है। यानी कि हम वी शुड बी एबल टू import मशीनरी at prices which are at par with import prices in other countries, ठीक है। लाइक यानी कि अगर इंडिया जिस प्राइसेस पे मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है या बांग्लादेश, वी शुड बी एबल टू import मशीनरी at same prices। इसके अलावा हमें मैंने बताया था कि हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं दे आर आल्सो कॉन्सेंट्रेटेड, हम सिर्फ कुछ मुल्कों में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स मार्केट्स भी बढ़ाने की ज़रूरत है। वी शुड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज एज वेल, दैट कैन बी डन थ्रू ट्रेड डिप्लोमेसी, ठीक है। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, ठीक है। तो फॉरेन ऑफिस जो होता है किसी भी मुल्क में, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव ambassadors in almost every country in the world, ठीक है। So these ambassadors can actually promote our industry, and in that way they can help us develop. Yeah, they can help us reach out to new export markets. ठीक है, उसके अलावा स्ट्राइक्स होती है इंडस्ट्रीज में, दूसरी प्रोसेशंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो हड़तालें होती हैं बाय पॉलिटिकल पार्टीज या ये जो बड़े बड़े जलसे होते हैं, दे शुड आल्सो बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बिकॉज दैट कैन अफेक्ट इंडस्ट्री बैडली, ठीक है। So that is all for today, actually. Okay. So do you have any questions? अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस क्रिएट करता हूँ, डू मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। आज के लेक्चर की अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। जी, एनी क्वेश्चन?
ठीक है, you also have an assignment due tomorrow, ठीक है, तो असाइनमेंट सबमिट करा दीजिएगा कल तक, और ये आपने ऑनलाइन सबमिशन ही करा दी, ठीक है। हाँ सर, एक बात करनी थी आपसे। जी जी। सर असाइनमेंट का थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो सकता है? हमने नहीं की, कर लेते, थोड़ी छोटी सी असाइनमेंट थी। सर थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं तो काइंडली 20 तक का टाइम दे दें। 20 तक का? नहीं नहीं, 20 से नेक्स्ट वीक का। अच्छा, नेक्स्ट वीक का। जी क्या डिफिकल्टीज आ रही? सर, थोड़े सवाल नहीं मिल रहे, और बीच में क्योंकि छुट्टियां आ गई थी तो थोड़ी सुस्ती हो गई थी, की नहीं। अब दोबारा करना शुरू किया तो उसमें टाइम लग रहा है, तो इसलिए कह रहे थे कि कल तक की डेडलाइन थोड़ी टफ है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो नेक्स्ट वीक तक एक्सटेंड कर दें। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर दूंगा एक्सटेंड, ठीक है। डन, ओके सर, थैंक यू। ठीक। अच्छा, because we still have about 8 minutes now, काम करते हैं, let's look at some data from economics of Pakistan। सर जी, जी। सर आपकी स्लाइड्स में इतना डाटा होता है और आप स्लाइड्स भी काफी ज्यादा बनाते हैं सर, एक हम्म। लेक्चर के लिए ये ज्यादा होता है। ज़्यादा होता है? नहीं, यस इतनी सर। लंबी स्लाइड्स तो नहीं, रीजनेबल है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप सर बुक्स 20 अगर आप बुक खोल के देखें ना, बुक में इतने लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से काफ़ी शॉर्ट होती है। आपका सब्जेक्ट कुछ इसी तरह का है, बड़ा ये ना थोड़ा से कहते हैं ना, डिटेल्ड सा सब्जेक्ट है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स सर होते हैं इसके, ठीक है। सर ये इतनी सारी थ्योरी है तो वो सारा मतलब कोई सारा रट्टे वाला एक तरह से लगता है सारा काम। हाँ, ये आपका सब्जेक्ट काफ़ी रट्टे वाला है, यू आर राइट, यस सर। ठीक है। तो वो बहुत इसमें मुश्किल लगता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल लगता है, बट स्टिल आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें वो सारा सब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं, तो ठीक ही है मेरे ख्याल से। फिर भी आपको इतना ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। मैं एज अ टीचर रट्टे को इनकरेज भी नहीं करता ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज आपका अगर फाइनल एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। और मैं इनकरेज नहीं करता कि आप 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए शीट्स पे शीट्स भरते जाएं, ठीक है। बेशक कम लिखें, टू द यस पॉइंट लिखें, काफ़ी होता है वो, ठीक है। यस सर। और मैं नहीं आपसे एक्सपेक्ट करता कि आप चीज़ों को बहुत डिटेल में याद रखें, ठीक है। जस्ट यू कैन रिमेंबर मेन मेन पॉइंट्स, और उन्हीं को हम मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। यस सर। ठीक है। सर असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैक्सिमम आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? हम्म, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया आपको। कितनी मार्क्स की असाइनमेंट है आपकी? आई थिंक 10 मार्क्स है। जी सर, आपने 10 मार्क्स कहा था। 10 मार्क्स था, मतलब 10 मार्क्स असाइनमेंट, ये तो काफ़ी शॉर्ट सी असाइनमेंट है। आप एक पेज की भी कर सकते हैं, 2 पेज की कर लें मैक्स, ठीक है। 1-2 पेज काफ़ी होना चाहिए। पर सर जो जो आपने डॉक्यूमेंट कहा था डाउनलोड करना है, हम्म, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला, सर उसमें तो मतलब डाटा सारा एक लूप में चल रहा है, कुछ भी मिस नहीं कर सकते, सारा इंपॉर्टेंट लगता है, परसेंटेजेस है, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, तो हम्म। उसमें से हम क्या मतलब तो अपनी जोड़ें? जजमेंट यूज़ वो करें, समझ ही नहीं आई। मार्क्स के हिसाब से करेंगे। और 10 मार्क्स का ना, तो आपने वो सारा कॉपी पेस्ट नहीं कर देना पूरा चैप्टर, ठीक है। तो बड़ा लंबा सा चैप्टर है, ठीक है। जस्ट यूज जजमेंट, आपको जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उनको मेंशन कर लें, ग्राफ्स को ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है। इस तरह का काम कर लें। सर वो क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट है, मतलब उनके ऊपर हम लोग मैक्स मिनिमम भी 5 से 6 लाइनें लिखते हैं, तो सर वो ठीक तो है, एक पेज बन ही जाता है एक क्वेश्चन। चलें तो ठीक सर है। 7। नहीं, इतने इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन है टोटल, उससे ज़्यादा नहीं है। सर तो अगर 7 क्वेश्चंस हैं। 7। 7 है, अच्छा, यस सर, 6 7 क्वेश्चंस दिए है। हैं आपने। चलें ठीक यस है। सर, एक 6 है। क्वेश्चन में अगर 5 लाइन भी लिख रहे हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चन के हिसाब से, ओके, यस सर। कर लें। ठीक है, आप उसको थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं, मे बी कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें बेशक, ठीक है। ओके। Right? मुझे 50 पेज बना के नहीं देने आपने, ठीक है। थोड़ा सा असाइनमेंट को शॉर्ट सर रखना आपने, ठीक है। कोशिश करें लेस, विद इन 5 पेजेस या उससे कम में इसको फिनिश करें, ठीक है।
सर ये जो आपने पेपर दिया है सर, इंफॉर्मेशन जरूरी है उससे ही लें, क्योंकि हम लोग गूगल से या किसी और सोर्स से भी ले सकते हैं ना? कोशिश करें इसी से लें, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप गूगल वगैरह से लेंगे तो वो ठीक नहीं होती, उसकी सोर्स का कुछ पता नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, हमारा स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अगर वो उसकी वेबसाइट से आपको डेटा मिल जाए, वो भी रिलायबल होता है, ठीक है, उससे ले लें आप। That would also be okay. Any other document published by the State Bank of Pakistan or by the government of Pakistan, उस वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं, ठीक है, या किसी बुक से भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक से। ओके सर, तो यही पूछना था कि हम किसी और सोर्स से डाटा ले लें या सर? ठीक। मेन चीज़ है कि वो कोई गवर्नमेंट पाकिस्तानी वेबसाइट से रिलायबल सोर्स हो, ठीक है। ओके सर। विकिपीडिया वगैरह पे जो डेटा होता है वो इतना रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट्स को अवॉइड करें, ठीक है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो मैं अटेंडेंस क्रिएट कर दी आपकी, सो डू मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। और जब आपकी असाइनमेंट की ड्यू डेट एक्सटेंड करनी है, तो देखते हैं अगर मैं भी कर सकूँ। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि गूगल क्लास में एक दफ़ा आप ड्यू डेट असाइन कर दें, आई एम नॉट श्योर वो चेंज हो सकती है कि नहीं। सर हो जाती है, उसका टाइम स्टैंड आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, अच्छा। जी। ओके, किस तरह कर सकते हैं आइडिया? जी सर। किस तरह कर सकते हैं? सर जो टास्क साइन किया हुआ है उसी को जाके री-एडिट करना है अपने, और उसकी जो डेट अपनी मर्जी से जो नेक्स्ट तक नहीं है वो एडिट कर दें। आई थिंक ये डेट तो नहीं हो सकती, चले मैं वैसे आपको वर्बली कह देता हूँ। ऐसा करें सर, उसका नया टास्क अपलोड कर दें, क्योंकि अगर ये एडिट नहीं हो रही तो फिर ये कल रात 12 बजे बंद हो जाएगी। हाँ ये भी है, अच्छा तो ओके। आप न्यू फिर अपलोड कर दें। चलो ठीक है फिर ठीक है, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। मैं असाइनमेंट की आपकी डेट एक्सटेंड कर देता हूँ टू 20 जनवरी, ठीक है। डन हो 20 गया तक सर, आप थैंक जमा यू। करवा दें, मैं फिर नई असाइनमेंट अपलोड करता हूँ, ठीक है। डन हो गया सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।